Hello dear students, today I am going to continue chapter 4 of Organization of Commerce and Management Standard 12 Commerce session number 6 of organizing. Under this particular chapter and under this particular function of the management, that is organizing, we discuss some of the basic information and then after I started that structure. Under structure I completed two different type of the structure: linear, we can say line, and also functional. With the help of that meaning, formation, figure and details are related to that figure we discuss. Now let's move to the third type or third structure of an organization. The name of the structure is formal organization. The name suggests, with the help of this name you can easily understand it's the one type of the formal thing. So how it works, which type of the characteristics are there, I will discuss with you, and also the next side of this formal is available અને એનું નામ પણ આપણે આપેલું છે informal. Next side we can say a shadow, we can say complement, but it is quite different. There is a difference between these two. So first of all, formal. Let's start with meaning. In order to achieve the predefined goals, the formal structure of relationship among persons and work is established, which is known as formal organization. હવે તમને થશે કદાચ કે સર આ તો સેમ જ છે જે આપણે આગળ જોયું હતું in the meaning of the organization. So yes, it is the same as the meaning of organization. Okay, the people are gathered for the predetermined goals to achieve the goals, and they are establishing one formal structure which relates to different persons and work with the work. Simple. તો આમાં કંઈ નવું નથી, but the new thing is there in the particular formal organization. It is quite different than the linear and functional. That's why the name is given that's why the name is given formal organization. Let's see and start with the some other information. But before starting, just want to revise one more time. Formal organization meaning, see, to achieve the predetermined goals અથવા તો predefined goals. The word is changed, બાકી કશું છે નહીં. Predetermined goals. So the formal structure of relation, ये जो goals है, right? For that, the formal structure of relationship among the persons. See, this word was not there. That is the main thing in the organization meaning, that is organizing meaning, and here in the formal structure किसका बनाना है हमें? रिलेशनशिप का among the persons and also the relationship of work. दोनों का हमें एक एस्टेब्लिशमेंट करना है, विच इज़ नोन एज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. अ सिंपल एंड वेरी सिंपल मीनिंग ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. तो यू हैव टू प्रिपेयर और यू हैव टू स्टार्ट योर वर्क टू अचीव योर गोल्स, एंड फॉर दैट you have to start the work by making the relationship with that work and with the persons. That is called formal organization. आपको काम करना है, एडवांस में डिसाइड होगा है कि आपका गोल्स क्या है, आपका टारगेट क्या है, उसके लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना है. वो स्ट्रक्चर फॉर्मल होना चाहिए, यानी रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से सबको मालूम पड़े. ऐसा एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बनाओ और उसको रिलेट करो लोगों से जो काम करते हैं वो, और काम से जो काम को हमें कंप्लीट करना है. देन एंड देन इट विल बिकम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. नाउ लेट्स मूव. लिनियर ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन आर द टाइप्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, राइट? सो इट इज द टाइप, all these are types of this formal, यानी वॉट एवर द डिस्कशन हाउ इट इज डिफर देन द इनफॉर्मल वो हम बाद में देखेंगे. लेकिन जो हमने डिस्कस किया आगे, जो लीनियर और फंक्शनल, वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के टाइप कहे जाते हैं. यानी ऐसे देखा जाइए तो ये टाइप एकदम सिंपल सा है, कई अलग अलग फॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इसमें इंक्लूड होते हैं, राइट? लेकिन हमारे सिलेबस में दो हमने कंप्लीट किए, बोथ आर टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जो दोनों टाइप हमने डिस्कस किए वो दोनों फॉर्मल टाइप ऑर्गेनाइजेशन थे, बिकॉज वहाँ पर हम गोल अचीव के लिए सब काम करने के लिए इकट्ठा होते थे, रिलेशन क्रिएट करते थे. सो कीप इन माइंड, ये एक मार्क का क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी आप चार्ट देखो, जब भी आप कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देखो, बुक देखो, तो उसमें तीनों या पांचों अलग अलग दिए ऑर्गेनाइजेशनल के जो स्ट्रक्चर है वो, राइट? फॉर्मल, इनफॉर्मल तो है, आगे हमने दो सीखे, और लास्ट में मैट्रिक्स. तो आपको ऐसा मालूम पड़ेगा हाउ इट द टू लीनियर एंड फंक्शनल इज टाइप. तो यस, दे आर द टाइप्स ऑफ दिस टाइप ऑफ द फॉर्मल. सो इन दिस टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, the necessary powers
आर गिवन टू अनेबल द पर्सन टू परफॉर्म सर्टेन काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये तो दोनों में था ना। अब आपको लगेगा कि चलो ये तो हमने पढ़ लिया है, ऐसा लगेगा, क्योंकि पावर के बिना काम नहीं होता, काम के बिना रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं होगी। सो हियर इन दिस टाइप ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सिंपली पावर्स यानी अथॉरिटीज आर गिवन राइट, और इट इज गिवन टू अनेबल। क्यों अथॉरिटी दी जाती है? सिंपली टू कंप्लीट द वर्क। सो इट इज गिवन टू अनेबल द पर्सन, जो पर्सन को हम काम कर रहे हैं वो अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अच्छी तरीके से उसको निभा सके, इसीलिए हम ये पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पावर देते हैं। तो कीप इन माइंड दिस थिंग। सो इन विच मैटर्स रिलेटेड टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बिटवीन सुपीरियर ऑफिसर्स आर क्लैरिफाइड। तो informal organization, how the particular delegation of authority is clarified on the basis of the work, on the basis of the two discussions which was already done, linear and functional। तो ये भी याद रखो कि मैटर्स रिलेटेड टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी वो ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्ट की जाती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर देखा जाता है, और कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो बिटवीन सुपीरियर ऑफिसर्स आर क्लैरिफाइड। तो उन लोगों के बीच में वो कैसे दी जाएगी वो यहाँ क्लैरिफाइड हो जाता है, यहाँ हमें उसको क्लैरिफाई करना है। सो ये एक मार्क का क्वेश्चन हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द अदर थिंग दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस, यानी कि ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। हियर इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। टोटल 6 कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर ऑन द स्क्रीन। द फर्स्ट वन, अच्छा क्वेश्चन कैसा आ सकता है? मोस्टली द क्वेश्चन इज देयर ऑफ 3 मार्क्स और समटाइम्स 2 मार्क्स। सो जब क्वेश्चन 3 मार्क में होता है तो जस्ट दे आर पासिंग द इंफॉर्मेशन दैट स्टेट द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स और 6 कैरेक्टरिस्टिक्स एज पर द सेक्शन सी और डी, यानी 2 और 3। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एनी 4 एनी 6। ओके, अगर 3 मार्क में आता है अलग से स्टेट की जगह लिखा होता है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, देन यू हैव टू एक्सप्लेन एनी 3 इन डिटेल। स्टेट में हम कोई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं देते, हम 1 या 1.5 लाइन में उसको ख़त्म कर देते हैं। लिस्ट आउट बोला हो तो सिर्फ लिस्ट ही बनाते हैं, ये कीप इन माइंड। सो द फर्स्ट वन दैट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी फॉर्मल स्ट्रक्चर। द एडमिनिस्ट्रेटर्स फॉर्म दिस फॉर्मल स्ट्रक्चर वेरी क्वेश्चंसली, राइट, क्वेश्चन के साथ कुछ वो क्वेश्चन लेंगे टू अचीव द डिज़ायर गोल। तो सब में गोल तो हमारा डिज़ायर है, सब में हमें कुछ अचीव ही करना है, लेकिन यहाँ पर जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे, है, हमें लिस्ट नहीं दिया है, हालांकि इट वाज देयर इन द लीनियर एंड फंक्शनल के जो कौन ये काम कर सकता है। तो लीनियर में थे हमें मालूम है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और फंक्शनल में हमने देखा था सीईओ। ये दोनों अलग अलग तरीके से सुप्रीम पावर उनके पास रहता था। लेकिन यहाँ पर जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे, टॉप अथॉरिटी सुपीरियर्स ही होंगे, राइट। सो वो एक फॉर्म बनाएंगे फॉर्मल स्ट्रक्चर का, और वो बहुत आसान नहीं होगा, यानी कि इसका मतलब उसको बहुत ही ऐसे बनाया जाएगा कि सब काम जो है वो डिज़ायर गोल के ही ऊपर हो, क्वेश्चनली। कीप इन माइंड दिस वर्ड। नेक्स्ट वन, लेकिंग फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये क्या कहा जा सकता है? इन दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर द प्लेस असाइन टू द एम्प्लॉइज आर नॉन चेंजेबल और नॉन अल्टरेबल, यानी कि यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से बराबर है, लेकिन इसको हम शायद ऐसा बोलेंगे कि एक टाइप का लिमिटेशन भी हो सकता है। लेकिन यहाँ क्यों दिया गया है ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। यानी कि क्या होगा, सी प्लेस जिसका है, जिसको काम सौंपा गया, इट इज़ असाइन, राइट, वो एम्प्लॉय को, राइट, वो कभी भी चेंज नहीं होगा और वो कभी भी ऑल्टर, छोटा भी कम नहीं होगा, राइट, वो सेम टू सेम रहेगा। यानी उसका जो काम है वो बदलेगा नहीं और उसका जो काम है वो उससे कम भी नहीं होगा, ये चीज़ याद रखो। लेकिन सेल्डम कैन देयर बी चेंज वंस द पोजिशन इज असाइन। सेल्डम मतलब बहुत, આપણે કહેતા નહિવત, બહુ નાનું, બહુ ઓછું, લાઈક દેટ, રાઈટ, નહીં જેવું સ્પષ્ટ ગુજરાતી આપણે કહીએ ને, લાઈક દેટ। તો સેલ્ડમ કેન દેર બી ચેન્જ, થોડો ઘણો ચેન્જ થશે, રાઈટ, બટ ફ્લેક્સિબિલિટી ઇઝ વેરી લેટ, નો ચેન્જ ઇઝ દેર। સો વન્સ ધ પોઝિશન ઇઝ અસાઇન, સો દેટ ઇઝ ધ મેઇન થિંગ। હવે મોસ્ટલી આ વસ્તુ ફંક્શનલ એન્ડ લિનિયર ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં આપણે જોઈ ગયા છે કે whatever the work is given to them, maybe you can't change. Flexibility is there, but you can't change the work. You can increase some of the work by giving authority, but as per the particular thing बहुत ही कम हम उसमें चेंजेस लाते हैं।
सो एक लिमिटेशन भी कहा जाता है, लेकिन एक चीज़ ऐसी भी है, उसको पॉजिटिवली देखे तो जिसको काम सौंपा गया है, द पर्सन टू हुम द वर्क इज गिवन ही विल डू द वर्क विथ गुड एफिशिएंसी इफ दिस टाइप ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट देयर। अच्छा है, चलो नेक्स्ट वन, थर्ड वन, डेलीगेशन ऑफ पावर फ्रॉम अपर टू लोअर लेवल। ये भी एक मार्क का क्वेश्चन है कि द डेलीगेशन ऑफ पावर इज डन बाय सुपीरियर ऑफिसर एंड फ्लोज फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल। ये कॉमन है, हम लिनियर में भी देख चुके हैं, मोस्टली फंक्शनल में भी हम ऐसे ही जाएंगे, लेकिन फंक्शनल में क्या है, एक लेवल होता है, वहाँ पर अलग अलग लोग अलग अलग को ऑर्डर दे सकते हैं काम करने के लिए। लेकिन अब जब यहाँ पर हम डेलीगेशन ऑफ पावर या अथॉरिटी की बात करते हैं, सो फ्रॉम अपर टू लोअर लेवल, एक मार्क के लिए जरूरी है, ऊपर से नीचे उसका पावर है, सुपीरियर टू हिज और हर सबऑर्डिनेट्स। फोर्थ वन, लार्ज साइज। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्राइजेस ऑफ लार्ज साइज, यानी जो भी उसका साइज होगा वो छोटा नहीं होगा। तो फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगी कि सर हाउ इट वाज देयर, यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का टाइप ही है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, तो लाइन तो छोटा है, तो फिर कैसे इंक्लूड होता है। लेकिन यहाँ पर कॉमन की बात करें, कॉमन साइज की, राइट, तो वो लार्ज साइज के लिए ज़रूरी है। यानी लीनियर ऑर्गेनाइजेशन लार्ज साइज के लिए चलता है, लेकिन वो सक्सेस नहीं है, राइट, लार्ज साइज में वो सक्सेसफुल नहीं होता है, लेकिन कई यूनिट चलाते हैं। सो दिस टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट कंप्राइजेस ऑफ लार्ज साइज मोस्टली, ये भी एक मार्क का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, पर्टिकुलर रिलेशंस ड्यू टू मैथोडिकली प्लान्ड फॉर्मल स्ट्रक्चर कैलकुलेटिव, वी कैन से मैथमेटिकल, जहाँ पर मैथोडिकली आता है ना, तो वो एक सिंपल कैलकुलेशन करके उसको दिया जाता है। तो मेथड को फॉलो करके फॉर्मल स्ट्रक्चर को प्लान किया जाता है, यानी मेथड के हिसाब से। और वैसे भी हम आपका प्लानिंग जो था हम उसमें देख चुके हैं कि ये मेथड क्या काम करती है, राइट। और मेथड में हमने ये भी देखा है कि ये मेथड का आउटपुट क्या है। ऑलरेडी वन क्वेश्चन वॉज देयर इन अवर एग्जामिनेशन टू, राइट, अरेंजमेंट फॉर कैरिंग आउट द प्रोग्राम। जो भी हमने प्रोग्राम बना है उसका एक अरेंजमेंट हम करते हैं मेथड के थ्रू, सो दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ वॉट एवर द प्रोग्राम्स आते हैं। सो ये मेथड के हिसाब से ही फॉर्मल स्ट्रक्चर तैयार होता है। सो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर methods the relations among the employees are particularly formed। तो ये भी जो रिलेशंस क्रिएट होंगे वो मेथड के हिसाब से उनको काम सौंपा गया, उसके हिसाब से कि टू होम दे आर द रिस्पॉन्सिबल, वहाँ से लेकर काम खत्म होने तक का रिपोर्टिंग जो भी है वो सब यहाँ आ जाएगा। तो रिलेशंस आर रिलेटेड टू दी वर्क। एंड लास्ट वन, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज डन ओनली थ्रू अ फॉर्मल मेथड, सो द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हैज़ नो प्लेस ओवर हियर। ये क्वेश्चन कई बार MCQs में भी आया गया है, कई बार ये क्वेश्चंस ट्विस्ट करके भी पूछा गया है। तो कीप इन माइंड, फॉर्मल ऑर्गेनाइज, जब आप इनफॉर्मल देखोगे तभी आपको ये एग्जैक्टली मालूम पड़ेगा कि फॉर्मल में क्यों ऐसा लिखा गया है। लेकिन जब फॉर्मल में होता है कम्युनिकेशन तो वो फॉर्मल मेथड से ही होगा, यानी कि इफ द पर्टिकुलर यूनिट इज सेड देन इफ दे वांट टू गिव सम ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन ऑर्डर्स टू दी लोअर लेवल या फिर सब ऑर्डिनेट्स को कुछ बोलना होता है तो ऑफिशियली वो जाते हैं थ्रू द लेटर, थ्रू देयर पर्टिकुलर टाइप ऑफ द मीडियाज, उनके जो होते हैं वो उसके हिसाब से, दैट समटाइम्स अगर छोटा यूनिट होता है तो सबको एक साथ बुला के कॉमन में बोला जाता है कि भाई कल से आपका टाइम 8 की जगह 7 होगा, ये सब होता है। लेकिन काम के हिसाब से कुछ करना हो तो वो थ्रू द मीडिया सबको पास ऑन किया जाता है, राइट। पर ये फॉर्मल मेथड है तो ऑफिशियली सबको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये जो पर्टिकुलर चीज़ है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के हिसाब से हम देखा जाएगा। सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है, यानी अनऑफिशियली आपको कुछ ऑर्डर नहीं दिया जाएगा, जो भी सिस्टम से होता है वही काम करेंगे। ये हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। लेकिन सबसे ज़्यादा यही चीज़ है कि ओपिनियंस और फैक्ट्स नहीं होंगे उसमें, जब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा तो इसीलिए इसको यहाँ पर कोई जगह नहीं दी गई है। सो दीज आर द 6 पॉइंट्स related to the formal organization, that is the characteristics, we can say features also. Now after completion of this one, let's move to the another business related structure, that is the fourth one, and the name of the structure is informal organization. Here informal, so नाम से ही मालूम पड़ता है ये फॉर्मल वे से नहीं जाएगा। लेट्स सी, informal organization is the formation of internal relations formed on its own in order to provide contribution to some results achievements formed without any formal planning।
सो अगर इसका ईज़िली आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये सेम चीज़ ऐसा है कि आप कुछ काम कर रहे हो, उसका आपको कोई भी ऑर्डर ऑफ़िशियली नहीं मिल रहा है, फिर भी काम होता है और ख़त्म हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों करना पड़ता है? वाई दिस टाइप ऑफ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस आर रिक्वायर्ड? सब अच्छी तरीके से लीनियर और फंक्शनल के हिसाब से जाता है, तो वाई देर इज अ नीड अराइज ऑफ ऑल दिस टाइप ऑफ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। लेकिन वी आर लिविंग इन दैट टाइप ऑफ द पर्टिकुलर areas in companies, or we are living in that type of the country, or mostly see business is there, so we have to create this type of the informal type of the relations. The reason is that sometime it happens कि when you are giving orders, it is authority, it is power. So कुछ भी काम आप करो वो ऑर्डर के हिसाब से करो, दैट इज यू आर गेटिंग सैलरी, तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन समटाइम्स बिकॉज ऑफ रिलेशंस यू आर कंप्लीटिंग सम ऑफ द वर्क, राइट। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगा वो भी इनफॉर्मल होगा, यहाँ पर कम्युनिकेशन होगा वो भी इनफॉर्मल होगा, है। साइज़ के हिसाब से मैटर करेगा तो वो भी थोड़ी छोटी साइज़ के लिए चलेगा, कंट्रोल भी नहीं होगा। ये सब इसके इजी कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन उसको हम डिटेल में देखेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दैट वन, लेट्स वंस अगेन complete the meaning with the help of the other lines, but before that one, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, तो वो कैसे बनता है, तो इज द फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल रिलेशन, अंदरूनी जो भी रिलेशन है विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द वन कंपनी और वन सेक्शन और यूनिट, वहाँ उनको ये फॉर्मेशन करना पड़ेगा। सो दिस फॉर्मेशन इज इंटरनल रिलेशंस एंड इट इज़ फॉर्म्ड ऑन इट्स ओन, अपने आप वो लोग बनाते हैं, राइट, बन भी जाते हैं कभी कभी। वाई? So in order to provide contribution to some result achievements. So यहाँ पर ये formed only क्यों होते हैं? Because they are gathered और this formation was done to contribute something to achieve the results. हमें कुछ अचीव करना है, रिजल्ट अचीव करना है, हमें प्रॉफिट तो अर्न करना है, लेकिन हमें उससे भी ज़्यादा उसको वेल्थ में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करने। सो प्रॉफिट तो आएगा, लेकिन अगर आप ऐसे रिलेशंस क्रिएट करते हो तो कोई विदाउट मनी भी 1 घंटा ज़्यादा काम करके वो यूनिट ख़त्म करेगा। दैट इज़ द मेन थिंग ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल है, राइट। सो ये रिजल्ट ओरिएंटेड है, अचीवमेंट से, और ऑल्सो फॉर्म्ड इट्स ओन, लाइक फॉर्म्ड विदाउट एनी फॉर्मल प्लानिंग। तो अपने हिसाब से तो बनता ही है, लेकिन प्लानिंग के बिना भी ये बन जाता है। ये सब चीज़ लीनियर फॉर्मेशन में नहीं होती है, फंक्शनल फॉर्मेशन में नहीं होती है, फॉर्मल फॉर्मेशन जो होता है उसमें भी नहीं होती है। यानी कि हम कहा जाए तो हमें कहे तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ये टाइप का नहीं होता कि फंक्शनल और लीनियर दोनों फॉर्मल ही ऑर्गेनाइजेशन है। So it was not there, or it is not there in the formal, but it is available here in informal by making the particular planning with the help of the seniors, by making the planning with the help of your colleagues, right? लेकिन ये प्लानिंग एडवांस नहीं होता, याद रखो। प्लानिंग के बिना कुछ नहीं होता, ये भी जरूरी है, राइट। उसकी कोई लिमिटेशंस को हम एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन यहाँ ये भी चीज़ याद रखो कि ये फॉर्म होता है फॉर्मल प्लानिंग के बिना। प्लानिंग होता है लेकिन फॉर्मल प्लानिंग नहीं होता है, अनऑफिशियली आउटसाइड प्लानिंग होता है, बिजनेस यूनिट के बाहर भी हो सकता है। रिलेशंस इंटरनल है। तो सीधी तरीके से एक ही लाइन में आंसर दूं और समझाऊं कि ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो कंपनी के अंदर अपना काम करवाने के लिए जो भी ऑथोराइज्ड पर्सन है वो एक ग्रुप बनाते हैं, उनकी एक साइड क्रिएट करते हैं और वो काम उनसे करवाते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड, और वो पॉजिटिव वे है ना, सिंपल चीज़ है। और हो सकता है प्लानिंग नहीं होता इसमें। सो द रिलेशंस आर डेवलप्ड अमॉन्ग द पीपल वर्किंग इनएविटेबली टुगेदर। जो लोग काम करते हैं उनके लिए, साथ में इकट्ठा होकर ही सब काम करते हैं, ये उनके लिए। तो रिलेशंस क्यों डेवलप होते हैं पीपल के बीच, दोज आर वर्किंग इन दैट वन, बिकॉज दे वांट टू अचीव द टारगेट। तो ये लोग यहाँ पर रिलेशंस डेवलप करते हैं लोगों के बीच में, वर्क रिलेटेड एंड इंटेंशनली, इनएविटेबली बोलते हैं उसको। इनएविटेबली मीन्स अनिवार्य और इरादा पूर्वक આપણે ભેગા થતા હોય છે। तो सच रिलेशंस डेवलप एंड फ्लोरिश ऑन इनफॉर्मल ग्राउंड्स। ये जो रिलेशंस क्रिएट होते हैं कई तरीके से वो एक ऐसा डेवलपमेंट है जो हालांकि ऑफिशियल नहीं है, फिर भी आपके गोल्स को अचीव करेगा। इट विल फ्लोरिश द ऑन इनफॉर्मल ग्राउंड्स, राइट। तो उसी मायने वो इनफॉर्मल ग्राउंड से हिसाब से ही वो शुरू होगा। यानी यहाँ पर बेस कुछ नहीं है, बोला जाए तो सब कुछ सिस्टम के हिसाब से नहीं चलेगा, उसको थोड़ा मरोड़ना पड़ेगा, लेकिन काम होगा। तो सच रिलेशंस आर नॉट फॉर्मली फाउंडेड, ये भी अलग चीज़ है रिलेटेड टू दिस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन।
कि वो फॉर्मली फाउंडेड नहीं होता है। Hence, no formal or proper chart can be prepared for the same. जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनता है तो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें ऐसा कोई फॉर्मल चार्ट नहीं है। सो ये भी एक मार्क का क्वेश्चन है। नो फॉर्मल और प्रॉपर चार्ट कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आपको ये काम करना है, आपकी अथॉरिटी ये, आपका काम ये है, नहीं नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि वर्कर भी कोई एक पर्टिकुलर काम के लिए वो आगे आके काम करता है और उसके नीचे कई लोग होते हैं, बिकॉज ही इज़ द एक्सपीरियंस पर्सन। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा बेनिफिट हो सकता है, प्यून भी कुछ अच्छा काम करके आगे निकल सकता है बिकॉज ऑफ हिज ओन स्किल। उसके पास डिग्री नहीं है, उसके पास एक्सपीरियंस है और उसके पास स्किल है। तो कोई प्लान ऐसा नहीं है, कोई भी कुछ भी काम कर सकता है। सो इट कैन बी कंसिडर्ड एज द शेडो ऑफ formal structure of an organization. This is the thing which was there in the examination. Why the informal organization is known as the shadow ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? क्योंकि जो काम फॉर्मल में होता है वही वही पर्टिकुलर चीज़ है, राइट, उसको थोड़ा अलग करके यहाँ प्रेजेंट करना पड़ता है। शेडो आपको मालूम है कि शेडो हमारा क्या क्या काम करता है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का शेडो है। उसके हिसाब से काम चलेगा, ऑफिशियली नहीं है लेकिन होगा। सो इट कैन बी वेरी क्लियर विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, बट सिंपल थिंग के ऑल्सो इट इज कंसिडर्ड अ सबऑर्डिनेट स्ट्रक्चर टू फॉर्मल वन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्मल स्ट्रक्चर जो है उसका एक सब ऑर्डिनेट ये हो सकता है, उसके ऊपर तो नहीं जा सकता क्योंकि सिस्टम में नहीं है, फॉर्मल प्लानिंग नहीं है। लेकिन जो इंटरनल रिलेशन से क्रिएट होता है तो उसका शैडो बना के हम वो स्ट्रक्चर को एक सब ऑर्डिनेट स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। वो भी एक मार्क का एक क्वेश्चन होगा। नाउ लेट्स मूव टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेम, दैट इज इनफॉर्मल। फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है, तो स्ट्रक्चर भी इनफॉर्मल होगा। सो दिस टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर इज इनफॉर्मल एंड इट डेवलप्स फ्रॉम इंटर रिलेशनशिप। ये अपने आप ही काम के हिसाब से, रिलेशंस के हिसाब से हो जाता है, इंटर रिलेशनशिप्स। This kind of structure is naturally formed when the employees working together or work for a commonly defined goal. So when you are working in the group, formally you are getting the orders, but somehow this type of the structure is totally structured, right, with the help of that people those who are working together. तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर हो चुका है, बन चुका है, राइट, उसको नेचुरली फॉर्म करना है। नेचुरली इसलिए लिखा गया हुआ है कि काम करते 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 कैसे भी ये एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो जाता है, ओके। और कॉमनली गोल के लिए सभी काम करते हैं, इसलिए तो ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज़ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। और ये देखा जाए तो जनरली लिस्ट आउट के तौर पे या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स स्टेट के तौर पे वो कई बार आ चुके हैं, लेकिन अगर शॉर्ट नोट के टाइप भी आए तो भी आपको इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखनी है। कई बार स्टेटमेंट टाइप भी आते हैं, वो स्टेटमेंट कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। पहला स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया कि इट कैन बी कंसिडर्ड एज, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड एज शैडो ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन दो, उसके बाद इसको कवर कर लो। ओके, नेक्स्ट वन, बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशंस। हम ये पहले से सीख के आए हैं, यानी कि सेकंड चैप्टर में भी हमने देखा था कि हाउ द ह्यूमन रिलेशंस आर क्रिएटेड, ह्यूमन एलिमेंट्स आर देयर। तो वंस अगेन यहाँ पर एक ह्यूमन एलिमेंट काम करेगा कि दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशंस। वन सिमिलर काइंड ऑफ फीलिंग्स, interest, values, hobbies, habits, and beliefs play a role, and also the informal structure is formed. तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, बिकॉज हमें तो एग्जाम ओरिएंटेड सोचना है। तो एग्जाम ओरिएंटेड ये है कि हाउ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड विद द ह्यूमन रिलेशंस, और व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमन रिलेशंस इन द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो लोग के अलग अलग फीलिंग्स है वो साथ में मिलके शायद एक फीलिंग हो जाए, उनका इंटरेस्ट एक हो जाए, उनकी हैबिट्स एक हो जाए, राइट, उनका जो वैल्यूज़ है डिसाइड करने का वो एक हो, राइट, उनकी हैबिट्स के हिसाब से देखें, उनकी बिलीव्स के हिसाब से देखें। तो ये सब काम करता है, यहाँ एक वाइटल रोल प्ले करता है वे वो। और ये जो पहले हमने देखा इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, वो भी यहाँ फॉर्म्ड होता है। तो समझ लो कि मेरी हॉबी और मेरे कलीग की हॉबी सेम है, तो ये यहाँ पर कुछ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। कई बार 10 लोग काम करते हैं, उसमें 8 लोगों की हॉबी कई चीज़ में एक जैसी हो जाती है, तब वो एक ऐसा इनफॉर्मल ह्यूमन रिलेशन क्रिएट करेगा बिकॉज ऑफ दैट इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। सो ड्यू टू दिस द स्ट्रक्चर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। तो ऐसे स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश्ड होते रहेंगे। थर्ड वन, एवर चेंजिंग।
हियर। तो सेकंड और थर्ड कई बार सेपरेटली 2-2 मार्क में भी आ चुके हैं, तो वो भी याद रखना और इन फ्यूचर भी वो आ सकते हैं। सो द इनफॉर्मल स्ट्रक्चर इज एवर चेंजिंग, ये कभी भी आप चेंज कर सकते हो, इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। वो लेकिंग ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी की तरह मीन्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो था कैरेक्टरिस्टिक्स लेकिंग ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ये यहाँ अवेलेबल नहीं है, ये एवर चेंजिंग है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी इज हाई। So the informal structure is ever changing. When an employee leaves one group and joins another work group, the new informal structure is created or changed as per the change in the work environment. So ये तो कॉमन इन्फॉर्मेशन है ना। अगर मुझे एक ग्रुप के साथ एडजस्ट नहीं होना है, अगर मुझे ग्रुप चेंज करना है, अगर मेरा जो वर्क ग्रुप है मैं छोड़ के दूसरे वर्क ग्रुप में जाना चाहता हूँ, जा सकता हूँ ना। मेरे पास मैं अकाउंट ऑफिसर हूँ और मेरे अंडर में एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो वो एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होगा। चलो मैं एक वर्कर हूँ और प्रोडक्शन सेक्टर में जॉबर के नीचे मैं काम कर रहा हूँ, वो एक लीनियर टाइप ऑर्गेनाइजेशन हो गया। लेकिन यही जो लोग हैं अच्छे अच्छे सोच वाले, यानी कि वो लोग जो सेम हैबिट्स रखते हैं, वो सब इकट्ठा होकर काम करते हैं, लेकिन अब उनको उन ग्रुप में नहीं रहना, तो दे कैन चेंज द ग्रुप ना, और दे कैन स्टार्ट अ न्यू ग्रुप और ज्वाइन अनदर वर्क ग्रुप। सो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर का यही है फंडा, और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर इसीलिए क्रिएट हो जाता है और चेंज भी हो जाता है। सो एज पर द वर्क एनवायरमेंट, तो कैसे चेंज होता है वैसा भी एक क्वेश्चन आता है, हाउ द particular informal organization is ever changing, so you can change anytime, okay, as per your work. नेक्स्ट वन यूनिवर्सल। सी हमने पहले से ही देखा है मैनेजमेंट से लेके कई चीज़ों तक कि एवरीथिंग इज यूनिवर्सल, एवरीथिंग इज इन द सेंस ऑफ द मैनेजमेंट रिलेटेड थिंग्स। सो दिस स्ट्रक्चर इज यूनिवर्सल, इट इज़ नॉट ओनली फाउंड इन बिजनेसेस, यानी कि हम सोचे कि एक बिजनेस में ऐसे इनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्रिएट किए जाते हैं, तो नहीं, इट इज़ फाउंड ऑल्सो इन डिफरेंट एरियाज, दैट इज एवरीवेयर where there is presence of informal organization in all kind of human activities. So another one more question, where the particular type of the informal organization is found, everywhere, आंसर आप लिख सकते हो everywhere, it is universal, right, in every type of the human activity, सब में ये informal organization informal structure create हो ही जाता है। सो दैट्स वाई इट इज़ यूनिवर्सल। कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि सर किसी जगह इनफॉर्मल में लिखा नहीं है एवर चेंज पर्टिकुलरली कि वो सब जगह चलता है, राइट, तो ये यूनिवर्सल यानी सब जगह ही चलता है ना, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हम नहीं बोलते, राइट, लाइक दैट, बट इट इज टोटली डिपेंड ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। मैंने ऊपर भी बोला था कि हम नीचे जब इनफॉर्मल देखेंगे तब उसमें डिटेल बताऊंगा। व्हेन द कम्युनिकेशन इज डन इनफॉर्मली एंड इज डन थ्रू ओरल कम्युनिकेशन प्रोसेस, इट इज़ नोन एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये हमारे पीछे लेटर ऑन इन द 6th चैप्टर अवेलेबल है सेपरेट इन्फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कि हम कैसे करते हैं। मैं एज अ टीचर आपको बोलूँ कि यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क टुडे, राइट, एज पर दी पर्टिकुलर सिस्टम में आपको ऑर्डर दे रहा हूँ, तो आपको काम करना ही पड़ेगा, ये फॉर्मल वे है, राइट, और मैं आपको क्लासरूम में बोलता हूँ तो कम्युनिकेशन एक कॉमन हो गया है। लेकिन यही चीज़ अगर मैं एक सोशल मीडिया या सोशल ऐप के थ्रू आपको दूँ, राइट, विद दी ऑर्डर, तो वो सेम कम्युनिकेशन कहा जाएगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन। लेकिन यही चीज़ मैं ओपनली कॉमनली ना बोलूँ और किसी एक बंदे को, एक स्टूडेंट को बोल दूँ कि भाई सबको ये मैसेज पास ऑन कर दो, तब वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएगा, है। तो कई बार ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन जो होता है इनफॉर्मली यहाँ पर आएगा। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर रिलेशंस जो क्रिएट होते हैं, जो फॉर्म्ड होते हैं अपने हिसाब से होते, तो फॉर्मेशन जो होता है वो अपने हिसाब से होता है, तो कम्युनिकेशन भी इनफॉर्मली रहेगा। सो इट इज़ डन थ्रू ओरल कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब ये ओरल और रिटर्न क्या है हम देखेंगे 6th चैप्टर में, लेकिन जब ओरली सब कुछ बोला जाता है, राइट, और उसकी कोई प्रूफ नहीं रहता है, तो फिर वो इनफॉर्मल बन जाता है। मैं कॉमनली कुछ बोल दूँ और मैं बोलूँ कि मैंने ये नहीं बोला है, तो कोई शायद ग्रुप ऑफ द पीपल होगा तो उसको मालूम कि मैं सच ही बोल रहा हूँ कि मैं बोला था। लेकिन अगर मैं किसी को बोल दूँ कि भाई आपको ऐसा नहीं बोलना है, मैंने बोला था, है, तो ओरली का कोई प्रूफ ही नहीं है ना, है? अब के हिसाब से नई नई सिस्टम, नई नई टेक्नोलॉजी आई तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ही याद रखो कि ओरल कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहा जाएगा। हैंस देयर आर चांसेस टू हैव मोर ओपिनियंस एंड लेस फैक्ट्स इन इट। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इन दिस पर्टिकुलर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। इंपॉर्टेंट यानी ये याद इसलिए रखना है कि वाई इट इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अंडर द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, राइट, कि देयर आर चांसेस टू हैव मोर ओपिनियंस एंड लेस फैक्ट्स। क्योंकि इनफॉर्मल वैसे जाता है सबके पास कुछ ना कुछ आइडियाज़ होंगे तो वो अपने ओपिनियन देंगे, राइट, और यहाँ पर फैक्ट्स शायद नहीं हो सकेगी
क्योंकि एक ऐसा फ्लोर है जो हमने यहाँ क्रिएट किया हुआ है जहाँ पर हर कोई अपनी इच्छा, हर कोई अपनी फीलिंग्स प्रेजेंट करना चाहता है। सो अपने ओपिनियन होंगे तो फैक्ट्स को असाइड किया जाएगा। ये भी एक चीज़ है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की। अब जब ऑथोराइज पर्सन फॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू से आपको ऑर्डर देता है, इसीलिए तो वो ऑथोराइज पर्सन है ना, कि उसको मालूम कि इसका आउटपुट क्या आएगा। फिर आपके ओपिनियन वो मंगवाते नहीं है, दे आर ऑलवेज गिविंग द ऑर्डर्स, दैट्स व्हाई दे आर एट द टॉप। સો અનધર થિંગ ઇઝ હું એવું કહીશ કે એક સારી વસ્તુ કહેવાની કે दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज़ वेरी फास्ट। इसको कोई हर्डल नहीं आता है यहाँ पर, इसको कोई टाइप का ऑब्स्टिकल्स नहीं आएगा बीच में, तो ये कम्युनिकेशन जल्दी से पहुँच जाएगा। इसीलिए कई बार कई चीज़ हमें वायरल करनी होती है ना, तो हम इनफॉर्मल वे से उसको यूज़ करते हैं, फॉर्मल वे से हम उसको यूज़ नहीं करते, बिकॉज वायरल करने के लिए हमें कोई एक टाइप की फास्ट चीज़ चाहिए जो जल्दी से हो सके। Next one, small size. Most probably the size of this kind of organizational structure is very small. The reason is that it is dependent on individual relationship. Right? वैसे देखा जाए तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी स्मॉल होते हैं, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि लीनियर ऑर्गेनाइजेशन में स्मॉल साइज भी होता है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वी कैन से कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लार्ज साइज में होते हैं और ये स्मॉल साइज में होते हैं। द रीज़न इज हियर कि इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन इंडिविजुअल रिलेशंस, यानी ग्रुप बहुत कम होता है, अच्छे सोच वाले, सही सोच वाले, उनकी वैल्यूज़ के हिसाब से, हॉबीज़ के हिसाब से वो ग्रुप बनाते हैं, तो इंडिविजुअल ग्रुप होते हैं तो साइज स्मॉल होती है। लेकिन इट इज़ ऑल्सो फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द इंटरचेंज ऑफ आइडियाज़। कई बार ऐसा होता है कि आइडियाज़ को अगर आप इंटरचेंज करो तो एट दैट टाइम दिस टाइप ऑफ द पर्टिकुलर साइज क्रिएट्स, यानी कि ये पर्टिकुलर फॉर्मेशन होता है, interchange of ideas. So there can be more number of such groups but they are normally small in size. एक से ज़्यादा कई ग्रुप्स हो सकते हैं क्योंकि उनके आइडिया यहाँ शेयर होते हैं, इंटरचेंज होते हैं, लेकिन स्मॉल साइज होती है और कई अलग अलग ग्रुप्स बन सकते हैं। सेवंथ वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ दिस इनफॉर्मल, lack of control. In this kind of communication circle, no control can be maintained as the person develops his or her circle with co-workers as per the needs. तो मेरी ज़रूरत के हिसाब से मैं मेरे को-वर्कर्स को मेरे ग्रुप में डालूंगा, ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी उनको निकाल दूंगा, ये वो खुद निकल जाएंगे। अभी ऊपर भी बोला कि काइंड्स ऑफ द सिमिलरिटीज विल बी देयर, दे कैन जॉइन एंड दे कैन एंटर एंड दे कैन रीजॉइन एंड दे कैन मे बी लीव एनी टाइम। ओके, सो ये एक लिमिटेशन है उसकी। कई बार ऐसा होता है एग्जाम में लिमिटेशन आती है, लेकिन यहाँ को लिमिटेशन का पॉइंट ही नहीं है, लेकिन ये पॉइंट लिमिटेशन का है, अलग से नहीं बताया गया, लेकिन याद रखो। ओके, सो कम्युनिकेशन सर्कल ऐसा होता है, वहाँ पर कंट्रोल नहीं होता है और हम उनको मेंटेन भी नहीं कर सकते ना। वाई? बिकॉज द पर्सन डेवलप्स हिज और हर सर्कल विद को-वर्कर्स, यानी नीड के हिसाब से उसको एस्टेब्लिश करते हैं। एंड लास्ट वन, कम्प्लीमेंट टू फॉर्मल स्ट्रक्चर। कहा जाता है कि दिस कम्युनिकेशन, राइट, इस कम्युनिकेशन यहाँ रॉन्ग लिखा हुआ, याद रखो आपकी बुक में शायद वो कुछ चेंज भी दिया होगा, लेकिन कीप इन माइंड कि दिस टाइप ऑफ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज डेवलपिंग फ्रॉम फॉर्मल स्ट्रक्चर ओनली। तो ये जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है उसको क्रॉस चेक कर लेना अपनी बुक में। कम्युनिकेशन की जगह आपको याद रखना है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है, तो ये डेवलप होता है फॉर्मल स्ट्रक्चर से। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, लेकिन जब यही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जब डेवलप होता है वो फॉर्मल स्ट्रक्चर को लेके, उसको उसका शैडो है, राइट। सो हैंस इट कैन बी सेड दैट कंप्लीमेंटिंग टू फॉर्मल, क्योंकि शैडो के हिसाब से ही जाता है। लेकिन ये स्टेटमेंट एग्जाम में कई बार आया है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर, राइट, तो ये याद रखो। और जब भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आए तो एक चीज़ आपको ये भी याद रखनी है कि दोनों एक दूसरे के सिनोनिम नहीं है, याद रखना। हाँ, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर उसका शैडो माना जाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि उसको हम अलग तरीके से हमारे बिजनेस में यूज़ करते हैं, राइट। सो कई ऐसी चीज़ें होती है। दूसरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि यहाँ पर दिया नहीं गया है, लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू। यहाँ इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। वो मैं आपको भी एक आध लेक्चर इसके बाद जो लास्ट में बचेगा उसमें मैं डिस्कस कर लूँगा, लेकिन उसका इमेज भी मैं आपको भेज दूँगा। लेकिन जब भी आपको स्टेटमेंट आए, शायद ऐसा स्टेटमेंट हो सकता है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, तो आपको ये समझाना है। और दूसरा,
वो मैंने ऊपर बताया। वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज द शैडो ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ये दोनों को साथ में रख के ही चलना है, दोनों को एग्जिस्टेंस के साथ चलते हैं, राइट। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इंटेंशनली बनाया जाता है, इनफॉर्मल इंटेंशनली नहीं बनाया जाता, राइट। वो स्पॉन्टेनियसली है, वो काम के हिसाब से चलता है। ये सब आप लिख सकते हो। ऑल्सो आई विल गिव यू दैट डिटेल रिलेटेड टू दैट स्टडीज, सो डोंट वरी अबाउट दैट वन। अभी तो हम बुक को ही फॉलो करते हैं। वेन एवर द रिविजन पार्ट्स आर देयर, एट द टाइम वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स वंस अगेन with the help of the different questions which was there in the past examinations. Okay, and already we have the videos of that particular revisions also, so you can watch that after the completion of the syllabus. But at present, look after this one. After this, the fifth point related to this formation of the structure of organization, that is simple and very important, matrix. Next time we'll look after that one. Thank you very much. Take care. Stay at home. Stay safe. हंसते रहिए, हंसाते रहिए, राइट। कई बार ऐसा होता है कि बिकॉज ऑफ वर्क आप पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन थोड़ा टाइम निकालिए फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, कई बार ऐसा भी होता है कि बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक हमें ऐसा टाइम भी मिल सकता है अभी, तो उसका यूज़ कीजिए। पहले भी बोला था, वैक्सीन जब भी आए ले लो, अपने पेरेंट्स को बोलो, अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर उनको भी बोलो जो 18 अब है वो भी ले लें, तो एक फैमिली सिक्योर हो जाए और आप आराम से अपनी लाइफ जी सको। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।